راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، زندگی تو ہمیشہ ہی مصروف رہتی ہے اور بہت سے کام اور ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر یوں ہی رہتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا ہمیں اپنا فضل دیتا ہے، توفیق دیتا ہے تاکہ ہم اپنی ساری ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ڈو یور بیسٹ، گاڈ ول ڈو دا ریسٹ۔ جہاں تک ممکن ہے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں پر ہماری کوششیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر خدا تعالیٰ کی قدرت بھی اپنا جلال ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم جو زندہ خدا پر امید رکھتے ہیں، ایمان، بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تو اور بلکہ ہماری ڈکشنری میں بھی نا امیدی اور مایوسی کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ تو چلیے خدا ہی کے پاک اور بابرکت نام سے اپنے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ یقیناً ہمارا خدا جو نہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے بلکہ ہمیں سنبھالتا اور ہماری فکر کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پر بھروسہ ہے کہ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم دکھ، تکلیف، بیماری یا کسی بھی مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے خدا ہی کو یاد کرتے ہیں اور خدا ہی کی دہائی دیتے ہیں، اور یقیناً وہ ہماری دعا کو، ہماری آواز کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا اور رہائی دیتا اور نجات دیتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے باز رکھیں جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں اور اس کو ناراض کرتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور جب ہمارا خدا ایسا عظیم، ایسا مہربان اور بھلا خدا ہے تو کیوں نہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ آئیے سنتے ہیں گیت تسی گاؤ سنا رب دی۔ تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔
उम्मीद है कि इस बाबरकत और खूबसूरत गीत के वसीले आपने बरकत पाई होगी। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और याद करवाते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी और आप हमें फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 033348256963 यानी 0333482596 तो कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमारे साथ राब्ते में रहिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत से लिसनर्स के फीडबैक्स हमारे सामने मौजूद हैं, इतने ढेर से खत, शॉर्ट मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत से लिसनर्स ने हमें कॉल किया, खत लिखे, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए चंद नामों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिनमें सबसे पहले मेरे सामने नाम है अरहम अमजद फेरोज आपका। आपने कहा कि प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा। प्रिंस अफजल शाहीन आप भी कहते हैं सुपर डुपर प्रोग्राम। अमजद खान आप कहते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी आदिल साहब और उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में समाअत किया, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जफरुल ज़िया आप कहते हैं वाह। और अब्दुल गफूर कैसर आप कहते हैं कि फैसलाबाद की उम्दा पेशकश है और PCRM हमेशा की तरह एक्सीलेंट। राकेश अरोरा आप कहते हैं जबरदस्त। हारून खान आप भी कहते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। हक नवाज टगर आपने कहा बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम, सो वंडरफुल। नवीद अहमद आप कहते हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रोग्राम है। मुन्नीर असलम आप लिखते हैं कि राहे जिंदगी प्रोग्राम की टीम को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो और आप कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया बहन रीबा ने और फिर तिलावत कलाम मुक़द्दस से दिली सुकून मिला। और फिर आप कहते हैं कि खत व किताबत का सिलसिला बहुत ही अच्छा है। ड्रामा चुरागे राह में जो सिलसिला हमने सुना बहुत पसंद आया। आखिर में दुआ का सिलसिला भी बहुत अच्छा है, सुनकर बहुत बरकत मिली। आमीन सुम आमीन। मुनीर असलम बहुत ही मुख्तसर लेकिन जामे फीडबैक के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने पूरे प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक दिया। उम्मीद है आप इसी तरह से सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। असद मुराद आप कहते हैं कि आदिल मुश्ताक उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज़ में प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे मामूल कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत से हुआ, बहुत अच्छा लगा। फेसबुक मैसेजेस, SMS और खुतूत हमारे दिलों की मिठास हैं और जब हमने सुना तो बहुत पसंद आया। सेहत की बातें में डॉक्टर साहब ने बहुत ही मौसर अंदाज में कैल्शियम के बारे में गुफ्तगू की। असद मुराद बहुत बहुत शुक्रिया आपके 20 खूबसूरत फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसे इस्तेफादा करते रहेंगे। ये खत हमें लिखा है मलिक अल्लाह बचाया खोखर। आपने संगत रेडियो लिसनर्स क्लब मुजफ्फरगढ़ से और आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्रोग्राम सुना यशवा बशीर की आवाज़ में, बहुत ही अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त था और आप कहते हैं कि इसके सभी सेगमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगे और बहुत ही मालूमाती थे और उम्मीद है कि आप मेरे इस खत को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह बचाया खोखर। और हमेशा हम तो आप जब भी आपका ख़त हमें रिसीव होता है हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ी मोहब्बत से हम आपके नाम को और आपके ख़त को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आज भी आपको अच्छा लगा होगा। अमजद खान आप सदर हैं बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर के। आप कहते हैं कि प्रोग्राम रीबा नईम की आवाज़ में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। तिलावत कलाम मुक़द्दस हमदिया गीत सुनकर दिल को सुकून मिला। सेगमेंट ड्रामा चुरागे राह भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। लिसनर्स के खत और SMS सुनने को मिलते हैं तो पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। और आप कहते हैं कि मेरी तरफ से पूरी टीम को और लिसनर्स को प्यार भरा सलाम कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। और फिर हमारे सामने खत मौजूद है अब्दुल गफूर कैसर आपका और चौधरी फहीम नूर आपने भी हमें लिखा सतलज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर से। और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना, हमारी समातों से टकराया, बहुत ही अच्छा लगा। इब्तिदाई गुफ्तगू भी बहुत ही अच्छी थी। तिलावत कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत से बहुत बरकत मिली। राहे ज़िंदगी प्रोग्राम में ख़त और मैसेजेस और पैगाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और आपने कहा कि मेरा मैसेज भी शामिल किया गया। सेगमेंट सेहत की बातें में डॉक्टर साहब की गुफ्तगू बहुत ही अच्छी थी और बाकी दीगर सेगमेंट्स का भी आपने जिक्र किया है और आपने इसको पसंद किया है। और आपने कहा है कि मुझे मिसेस रशीद की आप बीती बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर कैसर और चौधरी फहीम नूर आपके इस खूबसूरत फीडबैक के लिए। और उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और अपनी तहरीर के जरिए से, अपने खतूत मैसेजेस के जरिए से इसमें शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन तमाम मैसेजेस और खतूत के लिए। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ड्रामा चिरागे राह। और जैसा आप जानते हैं कि
कि पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया वहीं से जहां से दुनिया का आगाज हुआ, वहीं जहां से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। तो आइए आज इसकी दूसरी किस्त सुनते हैं। ड्रामा है हजरत आदम और हजरत हवा के बारे में। आइए मिलकर सुनते हैं। इस टहनी को मैं यहाँ कोने में खड़ा करता हूँ। ये हमारे घर का सदाबहार बड़ा दरख्त है। ये है लकड़ियों से बना हुआ आदमी। देखो मैंने कैसे बनाया है काइन भाई। इसको कहाँ रखूं? कहीं नहीं हाबल, ये जमीन मेरी है। तुम अपना आदमी कहीं और जाकर रखो। लेकिन काइन भाई और कौन सी जगह पर रखूं? बस मेरी जगह पर तुम नहीं रख सकते, कह दिया बस मैंने। अम्मा, अम्मा। क्या बात है हाबल? क्या कोई और जगह भी है हमारी? क्यों, क्या बात है जो जगह के बारे में पूछ रहे हो? अम्मा, क्या हम किसी और जगह पर कभी नहीं रहे? हाबिल को बताएं ये वहीं चला जाए। वहाँ कौन जा सकता है बेटा? तो क्या हम पहले कहीं और थे? तुम दोनों भाई तो हमेशा से यहीं रहते रहे हो, लेकिन तुम्हारा बाप और मैं। कहाँ रहते थे आप अम्मा? बागे अदन में। अम्मा, आपने इस बाग के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल था तुम लोग इन बातों को नहीं समझोगे हाबिल। आज आप जरूर बताएं। बताएं ना। अच्छा आओ यहीं दरवाजे में बैठ जाओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था ना कि खुदा ने जमीन, आसमान और चरिंद परिंद बनाए। हाँ हाँ अम्मा। हाँ अम्मा। इसके बाद खुदा ने कहा अब हम इंसान को बनाएंगे अपनी शबीह पर। फिर अम्मा? फिर खुदा ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी ली, उसी मिट्टी से उसने इंसान को बनाया। फिर खुदा ने इंसान के नथनों में अपना दम फूंका। यूं बेटे इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने उसे आदम कहा, तुम्हारा बाप आदम, और उसे बागे अदन में रखा। बागे अदन में खुदा ने हर किस्म के फल लगाए जो देखने में खूबसूरत और खुशनुमा और खाने के लिए अच्छे थे। आप अब्बू के साथ नहीं थी? उस वक्त नहीं बेटा, लेकिन बाद में मैं भी उनके साथ थी। तो आप कहाँ से आई थी? देखो बच्चों, अब बाकी बातें अपने अब्बा से पूछना। मैंने उनके लिए खाना तैयार किया हुआ है, तुम ऐसा करो ये खाना उनके पास बड़े खेत में ले जाओ। अच्छा। चल चल, तुम्हें तो खींचना और धकेलना ही पड़ता है। चल गधे, चल चल चल। अब्बा, मैं यहाँ हूँ कायन, इधर। हाँ आ जाओ इधर। खड़ा हो जा तू गधे, अब यहीं खड़ा हो अब्बा जा। हम खाना लेकर आए हैं आपका। लाओ लाओ, शाबाश, जल्दी करो, बहुत भूख लग रही थी मुझे। इस गधे ने बड़ा जोर लगवाया मेरा। ये ले अब्बा। लाओ इधर। भुना गोश्त, वाह वाह। बैठ जाओ यहीं पे, तुम भी बैठ जाओ। अब्बा, अम्मा बता रही थी कि पहले आप बाग अदन में रहते थे। तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता दिया? तो आप क्या किया करते थे वहाँ? बेटा बस मैं बाग के दरख्तों वगैरह की देखभाल किया करता था, और कभी कभी खुदा के साथ बातें। अम्मा कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त तक तुम्हारी अम्मा नहीं थी। खुदा ने सारे जानवर तो नर और नारी जोड़े जोड़े बनाए, लेकिन मैं अकेला था, जबकि हर किस्म के दूसरे जानवर का अपना एक एक साथी था। क्या आपने खुदा से नहीं कहा? नहीं बेटा, खुदा ने खुद महसूस किया कि मुझे अब किसी अपने जैसे साथी की जरूरत है, और ये कि मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। और फिर उसने मेरे साथ रहने के लिए जानते हो किसे बनाया? किसे अब्बा? तुम्हारी अम्मा हव्वा को। क्या उन्हें भी आपकी तरह मिट्टी लेकर बनाया खुदा ने? नहीं बेटा, खुदा ने जब सोचा कि वो मेरे लिए किसी को बनाए, तो उसने मुझे गहरी नींद सुला दिया, और जब मैं सो रहा था उसने मेरी पसलियों में से एक पसली निकाल ली। पसली? वो क्यों बाबा? इसी पसली से तो खुदा ने औरत को बनाया मेरे साथ रहने के लिए। अम्मा को
آپ کی پسلی سے بنایا خدا نے؟ ہاں بیٹا، جب خدا اسے بنا کر میرے پاس لایا، میں اسے دیکھ کر حیران ہوا اور کہا کہ یہ تو میری ہی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے۔ پھر ہم اکٹھے رہنے لگے۔ پھر کیا ہوا ابا؟ وہ باغ کیوں چھوڑا آپ نے؟ اب دیر ہو رہی ہے بیٹا، کچھ کام اور باقی ہے، باقی باتیں شام گھر جا کر کریں گے۔ آدم کیا کرتے رہے ہو آج کھیتوں میں؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ دیر؟ ہاں ہوا، دیر ہو گئی آج۔ کچھ دیر سامنے والی پہاڑی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا آج تمہیں؟ بچے باغ عدن کا پوچھ رہے تھے، انہیں بتایا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا، باغ عدن کی وہ زندگی، خدا کی قربت۔ میں بھی آج یہی یاد کرتی رہی، خدا کی محبت اور اس کی رفاقت، پرسکون اور آزاد فضا، نہ دکھ نہ تکلیف اور نہ یہ مشقت جو ہم دن بھر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بچوں کو بتاتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا، تم بھلا یہ باتیں انہیں نہ ہی بتاتی تو کیا تھا؟ ایک تو آدم ہر الزام تم مجھے پہ ٹھونستے ہو۔ یہ مجھے دے دو۔ نہیں یہ میرا، میں کھیل رہا ہوں اس سے۔ میں تمہیں کہتا ہوں مجھے دے دو، میں ماروں گا تمہیں۔ اماں یہ کائن تو لڑتا ہی رہتا ہے۔ نہیں اماں، میں کب لڑتا ہوں؟ مت لڑا کرو بچوں، تمہاری اماں کھانا پکا رہی ہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے یہاں۔ ابا، باغ عدن میں آپ اتنے آرام میں تھے، وہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں ابا، آپ کہہ رہے تھے گھر چل کر بتاؤں گا۔ ارے بیٹا، دیکھو بیٹے، بار بار سوال نہیں کرتے، میں تمہیں کھانا کھلا لوں، پھر تمہارے ابا تمہیں بتائیں گے کہ باغ عدن کیسے چھوڑا ہم نے اور ہم یہاں کیسے آئے۔ جی تو آج ہم نے سنا کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے انتہائی عجیب طریقے سے عورت کو آدم کی پسلی سے تخلیق کیا، اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی قدرت ہی سے ممکن ہوا، اور خدا تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بلکہ وہ نیست سے ہست میں لے آتا ہے چیزوں کو اور وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سنا ہم نے کہ کس طرح خوبصورتی سے خدا تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ہوا کو تخلیق کیا۔ امید ہے کہ آج کی قسط کو سن کر آپ کو برکت ملی ہوگی۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ، اور آئینہ کے سامنے ہے انتہا پسندی جو واقعی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور دوسری طرف ہے اعتدال جو کچھ نرم سا مزاج رکھتا ہے اور کچھ ہمیں کم ہی نظر آتا ہے، لیکن آئیے مل کر سنتے ہیں کہ ان کی کیا بحث و تکرار چل رہی ہے۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے انتہا پسندی، رکو، ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہاں چلی جا رہی ہو؟ رک نہیں سکتی کیونکہ بہت جلدی میں ہوں۔ تم جب بھی ملتی ہو جلدی میں ہوتی ہو، کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ لگتا ہے رکنا ہی پڑے گا۔ کیا کہا تم نے؟ ہنگامہ؟ یہ ہنگامہ نہیں ہے، حق کی جنگ ہے اعتدال، حق کی جنگ۔ جسے تم حق کی جنگ کہتی ہو نا، یہ دھونس بازی ہے اور یہ سراسر غلط ہے۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ اصول مجھے نہ بتاؤ، کیونکہ زندگی گزارنے کے میرے اپنے اصول ہیں۔ اپنے اصولوں کی پاسداری کے لیے معصوم لوگوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ اعتدال بھیا، جنہیں تم معصوم سمجھ رہے ہو یہی فساد کی جڑیں ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اوے اعتدال، تم نے مجھے چور کہا؟ بس کرو، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا نا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گی میں۔ کیا زبان کاٹنے سے حقیقت چھپ جائے گی؟ انتہا پسندی، یاد رکھو، ایک دن آئے گا جب وقت کا سورج اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا۔ میں آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ فیصلہ موقع پر ہی کر دیتی ہوں۔ بن سوچے فیصلہ کرنے کی عادت تمہیں برباد کر دے گی۔ مجھے برباد کرنے والا کوئی سورما پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ ات خدا کا ویر ہوتا ہے، چھوڑو یہ بیکار باتیں، میری بات مانو اور درمیانی راستہ اپنا لو۔ درمیانی راستہ؟ بزدلوں اور کمزوروں کا راستہ؟ نہیں، یہ تو دانش مندوں اور نبیوں کا راستہ ہے، جس کی منزل خوشحال زندگی ہے،
जबकि तेरी जिंदगी की मंजिल मौत है। मौत? मौत से डरा रहे हो मुझे? मौत का खेल तो मैं हर रोज खेलती हूँ। इंतहा पसंदी, मौत के भयानक खेल में न जाने तूने कितने बच्चों को यतीम और कितनी औरतों के सुहाग उजाड़ दिए। हाँ, उजाड़ दूंगी, उन सबको उजाड़ दूंगी जो मेरे मुतालबात के सामने दीवार बनेंगे। छोड़ो, ये जज्बाती बातें है ना, ठंडे दिमाग से अपने मुतालबे पर सोचो। क्या ये जायज है या नाजायज? मेरे मुतालबात बिल्कुल जायज हैं इत्तेदाल, बिल्कुल जायज हैं। इंतहा पसंदी, अगर मान भी लिया जाए कि तुम्हारे मुतालबात जायज हैं, मगर तुम्हारा तो तरीके कार भी ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ मेरे तरीके कार को? तुम्हारे तरीके कार में शिद्दत पसंदी है। तुम गर्मा गर्म चीज मुंह में डालकर मुंह जला लेती हो। मेरा मुंह जलाने वाले मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, याद रखना। और अगर मुझसे बच सको ना तो बच जाओ, क्योंकि मैं आ रही हूं मैं, और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? कहते हैं कि किसी चीज की इंतहा जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। किसी भी चीज की, हर चीज में इत्तेदाल और तवाजुन और मियाना रवि होनी चाहिए, चाहे ये कोई भी मामला हो। तो आज हमने देखा कि किस तरह इंतहा पसंदी और इत्तेदाल एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन मेरी राय में तो इत्तेदाल ही सबसे बेहतर है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय के बारे में हमें बता सकते हैं। और खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने बहुत सी ऐसी खूबियां इंसान के अंदर रखी हैं जिनको खुदाई खूबियां भी कहा जा सकता है। जैसे खुदा मोहब्बत करने वाला है, तो उसने इंसान के अंदर भी ये खूबी रखी कि वो दूसरों से मोहब्बत रखे। खुदा मुआफ करने वाला है, तो उसने इंसान के अंदर भी ये उसको तौफीक दी, उसके अंदर ये खूबी रखी कि वो दूसरों को मुआफ कर सकें। और खुदा रहम करने वाला है, और उसने हमें भी ये फजल बख्शा है कि हम दूसरों पर रहम कर सकें। तो ऐसी और भी बहुत सी खूबियां हैं जिनमें से मैंने सिर्फ 3 का जिक्र किया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तौर पर खुदा ने हमें बनाया है और जो खूबियां खुदा ने हमारे अंदर रखी हैं, उनको हम बरूए कार लाएं, यानी हम उनको इस्तेमाल करें और अपने जो हमारे फेलो बीइंग्स हैं, यानी हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ मोहब्बत से, रहम से पेश आएं, दूसरों को मुआफ करें और दूसरों के लिए हमेशा अच्छे एहसासात और जज्बात रखें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके और हमारी मौशरती जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी बन सके। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को याद रखेंगे और जरूर इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ जाता है, लेकिन जाने से पहले चाहते हैं कि आपके साथ चंद लम्हात मिलकर दुआ में गुजारें। तो आइए दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी रहमतों के लिए और आपकी बख्शिशों के लिए, आपके बड़े फजल के लिए। शुक्रगुजार हैं कि आप हर तरह से हमें तौफीक देते हैं ताकि हम दूसरों के साथ बेहतरी और भलाई के कामों में अपने आप को पेश कर सकें, और आप हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हम बुराई से बच सकें और नेकी और भलाई की तरफ हमारा रुझान और मिलान हो। हमें तौफीक दीजिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आ सकें, और अगर कोई हमारे खिलाफ कोई गुनाह या बदी करता है तो हम उसको मुआफ कर सकें। जैसे आप हम पर रहम करते हैं, हम भी दूसरों पर रहम कर सकें। हमें ऐसा करने की तौफीक दीजिए। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो अपनी होस्ट रीबा नईम को इजाजत दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।